Good morning everyone. Welcome to PS Maths Mitra. Today we'll see practice set 1.3 from linear equations. First timers, please subscribe the channel. So let's start with today's lecture without wasting any time. So today's first question is, as you can see here, it's determinant. Okay, this is determinant. Numbers are 3, 2, 4, 5. How to solve determinant? Okay, so simply we need to multiply cross. So here it is 3 into 5 and next is 4 into 2. Okay, first multiplication is 3 into 5, second is 4 into 2, and we need to subtract. Okay, so first multiplication minus second multiplication. So here is answer 3 5s are 15, 4 2s are 8, and the answer is 7. That's it. If such question comes in your exam, it will come for 1 mark. Right now it is just fill-ups. Very easy. First multiplication, second multiplication, and here it is subtraction. Okay, that's it. Okay, so today's second question is as same as first question now. Okay, in first question also there was a matrix 2 into 2. Okay, here it's also 2 into 2 determinant. We need to solve this. How to solve? Yes, first multiplication, second multiplication, and subtraction. Okay, so first multiplication minus 1 into 4, next is 2 into 7, and here it's subtraction. Remember one thing, whenever there is negative number, you need to write that number in a bracket. Okay, always remember this. So here it's 4 1s are 4, and as 1 is minus 1, so minus 4. Next is 2 7s are 14, and this minus sign just copied. Okay, minus 4 minus 14, minus minus plus, right? Plus does not indicate sign. Yes, what does it indicate? Addition. So we'll add both and we got the answer 18. And as I told you in our earlier lectures, add करो या subtract करो, sign हमेशा बड़े number का. Okay, so it's minus 18. Okay, that's it. Next is again 2 by 2 determinant. Same process, first multiplication, second multiplication. तो ध्यान यहीं पे रखना है कि एक नंबर जो है निगेटिव है उसे ब्रैकेट में लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन 5 into 0, here it's 0, minus 7 3s are minus 21, right? तो इधर पे प्लस 21 कैसे आया? यस, कैसे आया? बाहर में माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल. ठीक है, ब्रैकेट के बाहर अगर साइन माइनस हो तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. इसलिए ये माइनस 21 हो गया प्लस 21, राइट? 0 प्लस 21 ओनली. दैट्स इट. ओके, थर्ड वन इज, as you can see, they have given some fractions, all 4 actually, 7 by 3, 5 by 3, 3 by 2, 1 by 2. Same process, first multiplication 7 by 3 into 1 by 2, first multiplication. Next 3 by 2, yes, 3 by 2 into 5 by 3, right? Next multiplication, and here is subtraction. Okay, so 7 1s are 7. याद रखो, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई नहीं है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए या नहीं. It does not matters.
मल्टीप्लिकेशन में रूल इज़ वेरी सिंपल, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। सो 7 1 ज़ा 7 एंड 3 2 ज़ा 6, सिमिलरली 3 5 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6, ओके। अभी कोई बोलेगा सर 3 3 कैंसिल हो रहा है, क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया बिकॉज आगे जाके हमें सब्ट्रैक्शन करना है और सब्ट्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए जो हमें ऑलरेडी मिल रहा है। 3 2 ज़ा 6 मिल रहा है ना, ओके। तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम कब चाहिए? जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए, ठीक है। सेम नहीं होता है तो क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। अभी नहीं करेंगे बिकॉज अभी डिनोमिनेटर सेम है। सेम है तो एक ही बार लिखा, और सेम है तो एक ही बार लिखा ना, यस। और न्यूमरेटर में 7 माइनस 15, 7 माइनस 15 इट्स -8, यस। 7 प्लस है, 15 माइनस है, प्लस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्शन हो गया, और साइन बड़े नंबर का, ठीक है, साइन बड़े नंबर का। सो इट्स -8/6, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, सो हियर इज अवर आंसर -4/3, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट question is we need to solve equations, okay, by Cramer's rule. So this is all about Cramer's rule, okay. So how do we use Cramer's rule? So for this we solve 3 determinant D, that is, yes, that is 3 4 -4 3. सो D के नंबर देखो किधर से आ रहे हैं, गॉट इट। D के नंबर चेक कर रहे हो, 3 4 4, सॉरी -4, एंड लास्ट वन इज 3, दैट्स इट। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता ही है तुमको, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ओके। सो फर्स्ट इज 3 इंटू 3, क्या आ गया? 9। नेक्स्ट इज 4 इंटू -4, ठीक है, -4 है, ब्रैकेट में लिखना। 4 इंटू -4 -16 ना, तो +16 कैसे हो गया? यस, बिकॉज बाहर में क्या है? माइनस साइन है सब्ट्रैक्शन का, तो इसलिए ये हो गया +16। 9 + 16 it is 25, that's it. So this is how D मिल गया। dx, अभी dx कैसे मिलेगा? याद रखो जब तुम dx फाइंड आउट कर रहे हो तो x के कोएफिशिएंट्स, ठीक है, याद से x के कोएफिशिएंट लिखना नहीं, बाकी एज इट इज कॉपी, ठीक है। -4 3 राइट नाउ एज इट इज कॉपी किए। तो अगर x के कोएफिशिएंट नहीं लिख रहे तो उनकी जगह पे क्या लिखेंगे? यस, दिस 2 नंबर्स, कैन यू सी, 10 and 5। x के कोएफिशिएंट लिखने नहीं है जब हम dx फाइंड आउट कर रहे हैं। अगेन सेम प्रोसेस, डिटर्मिनेंट है 2/2, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन और बीच में सब्ट्रैक्शन, ओके। सो 10 3 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, बट हियर इट इज माइनस माइनस, सो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 30 + 20 क्या आ गया? 50। सो दिस इज अबाउट dx। सेम प्रोसेस फॉर dy। तो अब जब dy फाइंड आउट करना है तो हम y के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब dx फाइंड आउट कर रहे तो x के कोएफिशिएंट गायब करते हैं, और dy फाइंड आउट कर रहे तो y के कोएफिशिएंट गायब करेंगे, तो उनके जगह पे कौन आएंगे? यस, these numbers 10 and 5, got it?
हाँ, इनको एज इट इज कॉपी, ठीक है, इनको एज इट इज कॉपी, ठीक है, दैट्स इट। तो अगेन फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। 3 5 जा 15, 4 10 जा 40 और सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर आ गया -25। वाई इज दिस माइनस? यस, बड़े नंबर का साइन, ठीक है। सो क्रैमर्स रूल से x और y के वैल्यूज कैसे निकलते हैं? सो हियर इट्स योर फॉर्मूला, x इज इक्वल टू dx बाई डी। dx का वैल्यू है, d का वैल्यू है, पुट कर दिया, 25 1 25, 25 2 जा 50, सो x का आंसर आ गया 2। सिमिलरली y का वैल्यू dy बाई डी, दिस इज फॉर्मूला, ओके, यू नीड टू लर्न दिस। y का फॉर्मूला dy बाई डी, so dy it's -25, right, and d is 25, 1 जा, right, so answer is -1, ठीक है, ये माइनस है ना इधर पे, तो that minus will come with the answer, that's it, x and y। so solution is 2, -1, that's it। next करें, okay, so next question, as you can see equations are not in this form। what is this form? ax plus by is equal to c। so what does this form says? that x and y should be on the left side of equal to sign, okay, only x and y term, and the number is at right side, okay। so we'll convert this to equations in this form, 4x plus 3y as it is, and this -4 will go here and it will be +4, okay। किसी को प्लस का साइन नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है प्लस का साइन? यस, ठीक है, it is there only, so this is equation 1। next 6x is equal to 8 minus 5y। हाँ, कौन अपनी जगह पे नहीं है? y वाला टर्म, राइट, जो कहाँ पे होना चाहिए? लेफ्ट में, बस तो -5y को लेफ्ट में लेके जाएंगे, यस, क्या बन गया? +5y, राइट, 6x plus 5y is equal to 8, equation number 2, that's it। एक बार equations ये वाले फॉर्म में आ गए, then you can start your Cramer's rule, ठीक है। but very first step is to convert in this form, अगर नहीं है तो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में they were already in this form, ओके, अभी नहीं थे तो हमने कन्वर्ट किया, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद d। d किधर से मिलता है? राइट, 4 6 3 5, राइट, 4 6 3 5, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस सब्ट्रैक्शन ना, ओके। 4 5 जा 20, 6 3 जा 18 और फिर सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर आया 2, राइट। नेक्स्ट इज dx, हाउ टू फाइंड dx? यस, क्या बताया था मैंने? जब हम dx को फाइंड आउट करेंगे तो x के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, रिमेंबर, जब हम dx को फाइंड आउट कर रहे हैं तो x के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 4 और 6 की जगह पे किसको लिखेंगे? यस, ये जो सामने नंबर है उनको लिखेंगे, राइट नाउ। तो देखो 4 और 8 आ गया। हाँ, व्हाट अबाउट दिस टू? एज इट इज कॉपी, सेम
first multiplication, next multiplication and subtraction. Okay, so 4 5s are 20, 8 3s are 24, 20 minus 24, it's minus 4. Again why minus? Yes, sign of greater number. ठीक है. Next is dy. Again go to d. Here in d, yes, अभी किसको स्किप करेंगे? y के कोएफिशिएंट्स को स्किप करेंगे. ठीक है, तो उनकी जगह पे किसको लिखेंगे? यस, 4 and 8, राइट, 4 and 8. जब हम dy को फाइंड आउट कर रहे हैं तो y के कोएफिशिएंट स्किप किए और 4 और 8 लिख दिया. ठीक है, उनके जगह पे. हाँ, इनको एज इट इज कॉपी. ठीक है, तो जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, dx को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x के कोएफिशिएंट गायब करो. जब dy को फाइंड आउट कर रहे हैं तो y के कोएफिशिएंट मत लिखो. ठीक है, तो उनके जगह पे यस दिस टू नंबर्स. दैट्स इट. बाकी मल्टीप्लिकेशन तो तुम्हें आता ही है, सब्ट्रैक्शन भी कर ले दो ना, करते हो. ओके, 4 8 जा 32, 6 4 जा 24 और फिर माइनस किया. यस, तो आंसर आया 8. दैट्स इट. दिस इज द फॉर्मूला x is equal to dx by d. dx here it is minus 4 and d is 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4 with the minus sign. ठीक है, with the minus sign. So x is equal to minus 2. Next, similar formula for y. y is equal to dy by d. dy it's 8, d is 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8. So yes, y is equal to 4. Solution is, yes, क्या है solution? -2, 4. Right? That's it. Okay, next. So next question, as you can see, question number 6, right? 3 4 5 कर दिया ना हमने. सब हम करेंगे तो तुम क्या करेंगे? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 खुद से करो. ठीक है, वेरी इजी, इजी पीजी, राइट. 6th वाले में बस इक्वेशन नंबर 2 में थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, तो बस उसी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ. सो एज यू कैन सी, इक्वेशन नंबर 1 इट इज़ ऑलरेडी इन द फॉर्म जैसा हमें चाहिए. ax प्लस by इज इक्वल टू c. यही फॉर्म में चाहिए ना हमें, उसी फॉर्म में है, राइट. सो इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज लिखा. इक्वेशन नंबर 2 इज ऑल्सो इन द सेम फॉर्म, बट थोड़ा सा सॉल्व करते टाइम इजी हो जाए इसलिए हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, बिकॉज एज यू कैन सी डिनोमिनेटर में 2 है, राइट. तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड में, 3 टर्म है, तीनों को जाके मल्टीप्लाई करेगा 2. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, नहीं तो सिर्फ जिनमें डिनोमिनेटर में उनमें मल्टीप्लाई करके आगे जाओगे. तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हियर इट इज 2 into x 2x, हियर इज 2 2 कैंसिल, minus y 2 2 cancel, it's 1. This is our equation number 2. That's it. Equation number 1, equation number 2 is ready to perform. Yes, d d d d 2 2 coefficient of x 3 and कुछ नहीं है, मतलब -1. ओके, राइट नाउ. सो 3 and -1 लिख दिया d को. फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन. ओके, अगेन अगर कोई नंबर निगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में लिखो. ठीक है, और अभी
कोई माइनस माइनस प्लस नहीं करना। ओके, कोई बोलेगा माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर सब साइन चेंज हो जाएंगे, तो उनके लिए दिस माइनस साइन इज फॉर दिस नंबर, ओके, नॉट फॉर दिस। गॉट इट? तो अगर कुछ चेंज करना है तो इसमें चेंज करो, इधर नहीं आओ, ठीक है। तो 2 1 जा 2, as 1 is minus, so minus 2. Next is 2 3 जा 6 and this minus, so it's minus 6. Minus 2 minus 6, yes, minus minus plus, confusion नहीं है ना, minus minus plus, plus indicates only addition, तो add कर दिया, yes, और साइन बड़े नंबर का। ध्यान में एक ही रखना, सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब नंबर प्लस माइनस होंगे, ठीक है। जब नंबर कैसे होंगे? प्लस माइनस, देन ओनली सब्ट्रैक्शन होगा, उसके अलावा कभी भी सब्ट्रैक्शन करना नहीं है, ठीक है। सो दिस इज d -8. नेक्स्ट इज dx. dx, हाउ टू फाइंड dx? यस, पता ही है ना सबको। तो dx फाइंड आउट कर रहे तो x के कोएफिशिएंट गायब करो और उनकी जगह पे यस नंबर लिखो ना सामने से। तो हियर इट्स 2 and 1, तो x के कोएफिशिएंट गायब करके हमने 2 और 1 लिखा। y के कोएफिशिएंट एज इट इज कॉपी, राइट, दैट्स इट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन, बीच में सब्ट्रैक्शन। जो अगर नंबर निगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में 2 1 जा 2, -1 है तो -2, 1 into 3 it's 3 and here it's minus, okay, -2 -3, yes, minus minus एडिशन आ गया -5। साइन ऑलवेज बड़े नंबर का, ठीक है, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, साइन हमेशा बड़े नंबर का। सो नेक्स्ट इज dy। याद रखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिस किसी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, वेदर इट इज dx और dy, ठीक है, तो जिसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो उसके कोएफिशिएंट गायब करो, ओके। तो dy का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो dy के, ठीक है, y के कोएफिशिएंट हम गायब करेंगे और उनकी जगह पे 2 और 1। गॉट इट? ओके। सो y के कोएफिशिएंट गायब किए, उनकी जगह पे 2 और 1 आ गया एंड दिस 2 2 कम्स फ्रॉम हियर ओनली एज इट इज, ठीक है। So again, first multiplication, second multiplication and subtraction. 2 1 are 2, 2 2 are 4. Subtraction किया 2 minus 4. Yes, it's -2. ठीक है, साइन बड़े नंबर का। फॉर्मूला लिखा, x is equal to dx by d. What is dx? -5. What is d? -8. Minus minus cancel और आंसर आ गया 5/8। सिमिलरली y is equal to dy by d. dy is -2, d is -8. Again minus minus cancel. 2 1 are 2, 2 4 are 8. That's it. y is equal to 1/4. Okay. That's it for the day. वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो याद से। ओके, थैंक यू।